بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آپ سب دوستوں کو تکلیف دی ہے۔ جو بھی میں بات کروں گا یہ اس خالص ریلیٹڈ محرم الحرام کے سلسلے میں ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میری بات اچھی طرح سے سنیں اور میرے کہنے کا مطلب جو ہے وہ عام پبلک، خاص کر یہ جو سوئی ہوئی ہماری ایڈمنسٹریشن ہے، اس کو جگانے کے لیے ایک آواز ہے۔ محرم ایک ایسا مقدس مہینہ ہے جو ہر سال منایا جاتا ہے۔ اس کی ہسٹری 1400 سال پہلے سے شروع ہوئی ہے، اور ایک چیز جو ہے جس کا نام ماتم داری ہے وہ 1400 سال سے چلی آ رہی ہے۔ یہ اس محرم کا ایک معجزہ ہے کہ یہ کبھی بھی اس میں کمی نہیں ہوئی ہے، البتہ دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ ماشاءاللہ سے بہت ذہین آدمی ہیں، آپ ماشاءاللہ سے بہت جانے پہچانے آدمی ہیں، پریس کے ساتھ آپ کا وابستہ ہے۔ آپ ہماری آواز کو اچھی طرح سے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ ذریعہ ہے ہمارا، آپ کی وساطت سے ہم اپنے جذبات، خیالات لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اگر آپ اراؤنڈ دا ورلڈ دیکھیں گے، محرم کا جو ایک تصور ہے وہ پورے ملک میں آہستہ آہستہ کر کے ہر غیر قوم میں بھی مقبول ہوتا جا رہا ہے۔ خیر، یہ تو ایک فنامنا ہے جو چل رہا ہے، لیکن میں اپنے وادی گلپوش کشمیر کی بات کر رہا ہوں، جموں کشمیر، لداخ کی بات کر رہا ہوں۔ اگر ہم دیکھیں گے پورے ہندوستان میں ہمارے شیعہ برادری کی آبادی تقریباً 2 سے 3 کروڑ پر ہے، جس میں سے 15، 14 یا سمبڑی سے 16 لاکھ کے قریب جموں کشمیر میں ہماری شیعہ برادری ہے۔ ہم نے بارہا گورنمنٹ، جو بھی گورنمنٹ تھی، چاہے وہ اس وقت الیکٹڈ گورنمنٹ تھی یا اور کوئی گورنمنٹ تھی، چاہے وہ گورنر رول تھا یا آج کل جیسے ایل جی رول ہے، ہم نے بار بار اپنے مطالبات ان کے سامنے رکھے، لیکن وہ ایک کان سے سنتے تھے، دوسرے کان سے اس کو باہر کر دیتے تھے۔ مجبوراً ہمیں اس سال تنگ آمد بجنگ آمد ہم نے یہ فیصلہ لیا، ہم کسی گورنمنٹ فنکشن میں شمولیت نہیں کریں گے جو ریلیٹڈ ٹو محرم ہوگا۔ مثلا میں آپ کو پوائنٹ وائز کہوں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا، جموں کشمیر میں تمام شیعوں نے، خاص کر ہماری جماعت نے، انتظامیہ کے ساتھ محرم کی کسی بھی میٹنگ سے دور رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہماری بار بار کی درخواستوں اور گزارشات کے باوجود ہمارے تحفظات اور مطالبات کو مسلسل نظر انداز کیا گیا۔ ہم نے فنڈز وغیرہ کے وسائل کے بارے میں بار بار ان کو سمجھایا، بتایا، پلان دیا، لیکن اس پر عمل نہیں ہوا۔ فار ایگزامپل ہم لے لیں گے ڈائریکٹر ہیلتھ سروس۔ ڈائریکٹر ہیلتھ سروس کو جب ہم کہتے ہیں کہ جب ہمارے جلوس نکلتے ہیں، اس جلوس میں ماتم زنی ہوتی ہے، زنجیر زنی ہوتی ہے، ہمارے بچے لہو لہان ہوتے ہیں، ان کو اس وقت ٹریٹمنٹ فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ان کے پاس کتنا یہ حیرانگی کی بات ہے، ان کے پاس اس وقت بنڈیج نہیں ہوتا ہے، دوائی نہیں ہوتی۔ چھوٹے بچے جو اپنے ماں کے گودوں میں ہوتی ہیں ان کو بھی پرابلم ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں چلیے اسی توفیق سے، اسی توسل سے، آج محرم ہے، یہاں گورنمنٹ کا انتظام ہے، ڈاکٹرز ہوں گے، پیرامیڈیکل فورسز ہوگا، یہ ہوگا،
हमारे बच्चों को भी देखभाल होगी, कुछ नहीं होता। हमने बार बार उनको ये कहा कि भाई अगर आप आते हैं तो कहते हैं कभी हमारे पास बैंडेज नहीं, हमारे पास दवाई नहीं, हमारे पास मैन पावर नहीं, तो फिर फायदा क्या है इस मुहर्रम मीटिंग से? जब आपके पास कुछ नहीं है तो फिर हमको आप बुला के क्या साबित करना चाहते हैं? फोटो शो और क्या है? उसके बाद हम अगर बात करेंगे CAPD की बात, उनसे जब हम बात करते हैं कि मुहर्रम है, मुहर्रम सिर्फ एक सेक्ट का नहीं है, मुहर्रम तमाम आलम इस्लाम का है। मैं ओपनली निकल के सीना को भी करता हूँ, मेरा भाई घर में बैठ के मातम करता है। मैं ओपनली अपने कुछ दोस्तों को, अपने कुछ रिश्तेदारों को वगैरह, हमसायों को एक दावत देता हूँ। वहाँ पर शब खानी होती है, मरसिया खानी होती है, उनके लिए इंतज़ाम करता हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो घर में बैठ के छोटा करते हैं, जितना उनकी मतलब वसातत होगी, जो उनके हाथ में होगा, दस्ते कुदरत में होगा। लेकिन वो जब जाते हैं अपने इस सेंटर पर, जो इनका CAPD का सेंटर है, जिसको हम कश्मीरी में गार्ड कहते हैं, वो उसको कहता है गार्ड मुंशी, वहाँ आपको वही मिलेगा जो आपकी राशन पर। वो राशन पर जो हासिल करेगा, घर लाएगा, वो अपने अयाल को खिलाएगा या उन मेहमानों को खिलाएगा। नतीजन वो बेचारे को बाजार में जाके ब्लैक में खरीदना पड़ता है। चावल हो, खांड हो, तेल हो, बाकी चीज़ें जो भी अवेलेबल होती थी इस CAPD से, वो उसको बाजार से ब्लैक में लेना पड़ता है। तो अब बताइए खुदारा कि हमें कौन मजबूर कर रहा है ब्लैक मार्केटिंग में सामान देने के लिए? ब्लैक मार्केट को कौन बढ़ावा दे रहा है? गवर्नमेंट दे रही है। हम, मेरी ज़रूरत है, मैं आपके दुकान पर जाता हूँ, आप मुझे 10 रुपए की चीज़ 15 रुपए में देते हैं, क्योंकि मेरे घर में नियाज है, मुझे लेना है। अब ये ब्लैक मार्केटिंग कैसे अरूज पर पहुंचती? इसी की वजह से, जबकि आपके पास, आपके गोदामों में उतना गला नहीं, उतना सामान मुहैया नहीं है जिसका आप मीटिंग में कहते हैं ये भी वकू रहेगा, वो भी वकू रहेगा, ये भी अवेलेबल रहेगा, ये भी अवेलेबल रहेगा। लेकिन बदकिस्मती से मौके पर जब जाते हैं तो कुछ अवेलेबल नहीं होता है। मुझे याद है कि ये अपना जडीबल में आलमगरी बाज़ार में एक बहुत बड़ा इनका घाट है। मैं एक दिन गया लास्ट ईयर, जब उसके अंदर गया, वहाँ सिर्फ मैंने चूहे देखे, इतने बड़े बड़े चूहे जैसे बिल्लियाँ थी। मैं कहा ये इनका जाहली स्टोर वालों का स्टोर, और मुहर्रम के दिन न ये खाली। मैंने साहब क्या करें, जब तक सप्लाई नहीं आएगी, सप्लाई है ही नहीं। हम उस वक्त सप्लाई देंगे जो कार्ड पर देनी होगी, इस तरह से तो दे नहीं सकते। तो फायदा क्या है, मकसद क्या है? आप हमको कहते हो हमने आपके लिए सब कुछ अवेलेबल रखा है, तो जब मौके पर जाते हैं तो वहाँ कुछ नहीं। ये एक और मजाक। इसके बाद हमारा आता है लावड़ा। अगर आप इंटीरियर में, डल में जाएंगे, आप अगर देखेंगे वहाँ सारे जो छोटे छोटे पुल बने हैं वो लकड़ी के बने। लोग कहते हैं कि हम यहाँ से जुलूस निकालते हैं, हम अपनी लागत से बाजार से लकड़ी खरीदेंगे और इन पुलों को मरम्मत करेंगे, क्योंकि इस पर से बच्चे, बूढ़े, औरतें गुजरती हैं जुलूस आलम लेकर, हमें इजाज़त दे दीजिए, हम इसको ठीक करेंगे। नहीं, ये भी इजाज़त नहीं। अच्छा, आप खुद ठीक करो। ग्रीन बेल्ट है, क्या तमाशा है, क्या मजाक है? ग्रीन बेल्ट है तभी इजाज़त नहीं, खुद हम ठीक करेंगे तब भी इजाज़त नहीं। ये इतना जुल्म क्यों? इसकी वजह क्या है? अब रही सही बातों बातों से हमारा दिल बहलाते थे, मुहर्रम मीटिंग है, ये करेंगे, वो करेंगे, ये रखेंगे, वो रखेंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है, जब से LG गवर्नमेंट आई है तब से तो बिल्कुल सत्यानाश हो गया। अभी कोई मीटिंग, एक साहब उधर बुला रहे हैं, दूसरे साहब यहाँ। ये ऑफिसर्स जो है एडमिनिस्ट्रेशन, उनको अपने स्कोर्स पूरे करने और इस्तेमाल किया जाता है। हमको मकसद क्या है इसका? मकसद तो कुछ निकला नहीं। अगर आप हमको फैसिलिटी नहीं दे सकते हैं या आपके पास वसाइल नहीं है फैसिलिटी देने के,
तो आपको क्या ज़रूरत है ये मीटिंगें बुलाने की? ज़बरदस्ती आप क्यों मीटिंग बुलाते हैं? नहीं जी आना है, ज़बरदस्ती आना है, पुलिस वालों को डायरेक्शन, ओ फलानी को ला, फिस्तानी की, व्हाट इज़ दिस? मीटिंग में आपको हमने बुलाया, आपको हमने मदऊ किया, हमने तो कोई पुलिस नहीं भेजी आपको कि नहीं ज़बरदस्ती भाई आना है। हमने आपको रिक्वेस्ट की कि भाई आओ हमारी बात सुनो। अगर हम आपको ज़बरदस्ती लाएंगे उसमें तो वो मज़ा नहीं है। आप अपनी मर्जी से आए, जब तक आपकी मर्जी शामिल नहीं होगी तब तक हम बात नहीं कर सकते। हमारी बात तभी सुनेंगे ना जब आपका भी ख्वाहिश हो कि सुनने का। लेकिन यहाँ बदकिस्मती, यहाँ ज़बरदस्ती लोगों को मीटिंग रूम में बुलाया जाता है, बैठो जी मीटिंग करनी। क्यों करेंगे? नहीं करना है भाई, नहीं नहीं चाहिए हमें। हम पर आप इतना मेहरबानी करो कि हमें तंग मत करो, हमें छेड़ो मत। हम अपने मुहर्रम के इंतजाम खुद करेंगे, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से हम करते आए हैं, एक बिजली लैंप के लिए हमें बड़े बड़े दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो है क्या हम अपने जेब से इतना 100 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकते? जब हज़ारों रुपया हम खर्च करते हैं मुहर्रम के शब पर, तो एक 100 रुपये का बल्ब नहीं ला सकते? हमने बार बार इनको PWD को ले लीजिए, हमने बार बार उनको कहा कि भाई हम ये नहीं कहते हैं कि हर जगह आप ब्लैक टाइपिंग करो, हर जगह आप सीमेंटेड सड़क बनाओ। हमने कहा कम से कम स्मूथ करो सड़क को, इस सड़क में गड्ढे पड़े हैं इनको ठीक करो, ताकि हम लोग मुहर्रम के दिनों में नंगे पैर चलते हैं, हमें चलने में प्रॉब्लम ना हो। चलो हम बर्दाश्त करेंगे, छोटे बच्चे बर्दाश्त नहीं कर सकते, कुछ नहीं होता है। हाँ जी करेंगे, और मीटिंग बुलाएंगे फर्स्ट मुहर्रम को और कहते हैं कि 10 मुहर्रम को हो गया ही, शाम को बुलेटिन आता है मुहर्रम पीसफुली हो गया। खाक हो गया, क्या हो गया? आपने कुछ किया ही नहीं, तो आप किस बात का ऐलान करते हैं कि हमने ये किया वो किया? और मुहर्रम जो है वो सिर्फ 10 दिन या 8 दिन का मुहर्रम नहीं, ये पूरे 2 महीने चलता है। मजलिस से तकरीबन अगर आप कैलकुलेशन करेंगे मुहर्रम और सफ़र, ये 2 महीने तकरीबन इसमें 10-15 हज़ार से ज़्यादा तजावुज़ करती हैं मजलिसें, छोटी बड़ी, बड़े इमाम बारगाहों में, मस्जिदों में, घरों में, मैदानों में, अपनी अपनी जगह हर एक अपने तरीके से अंजाम देता है। कहाँ कहाँ इंतज़ाम? आप देखिए यहाँ बड़े जुलूस निकलते हैं, उसमें क्या क्या इंतज़ाम होता है? वो पुलिस वाले इस तरफ भी होते हैं, इस तरफ से भी होते हैं, उस तरफ से भी होते हैं। तो मतलब क्या है उसका? वो क्या दिखाना चाहते हैं कि पुलिस के गार में उन्होंने जुलूस निकाल? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। क्योंकि मैं पहले ही आपके सामने यह अर्ज कर चुका हूँ कि मुहर्रम सिर्फ शियों का नहीं है, तमाम आलम इस्लाम का दिन है। यह पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का दिन है। हम सब मुसलमान, एक मुसलमान हाथ सीने पर मार के मनाता है, एक मुसलमान घर में खामोश और गमगीन होकर मनाता है तो हर एक मनाता है। लेकिन आप बताइए आज तक कौन सी फैसिलिटी हमको मिली? हमने बार बार यहाँ से मेमोरेंडम दिए, आपने लिस्ट दिए, ये करेंगे जी, वो करेंगे जी, वो करेंगे, कुछ नहीं होता। टीवी पर आ जाएंगे, कभी आपने कल ही देखा होगा किसी जगह कोई DC साहब थे, हाँ जी ये भी होगा, वो भी होगा, ये भी होगा। मतलब कुछ नहीं, मकसद कुछ नहीं। मजाक क्यों करते हो? क्यों मुहर्रम को मजाक बनाते हो? इतने बड़े बड़े यहाँ फंक्शंस होते। देखिए मैं बात करूँगा, श्री अमरनाथ जी की यात्रा होती है, हम बहुत खुश हैं, वहाँ से यात्री आते हैं, लाखों में आते हैं, हम उनके मेज़बान हैं। हमें चाहिए उनके लिए हर एक चीज़ मुयस्सर रखें। वो हमारे भाई हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने से आते हैं। जब आप 2 महीने पहले उनके लिए सब इंतजाम कर सकते हो, क्या एक जिस कम्युनिटी के लिए ये छोटा सा इंतजाम नहीं कर सकते? आपके पास पूरा रोड मैप है, कहाँ से जुलूस निकलता है, कहाँ से अलम निकलती है, कहाँ किस बार इमाम बारगाह में मजलिस होती है। ये सब जब पुलिस के पास सब कुछ होता है तो क्या बाकी डिपार्टमेंटों के पास ये नहीं है? लेकिन हाँ, ये समझ में नहीं आता है हमारे साथ ये सेकंड सिटीजन जैसा सलूक क्यों किया जाता है। बहुत मजबूर हो गए हैं कि अब ले लीजिए PHE लास्ट ईयर जब मुहर्रम था, जिडीबल में जुलूस था, जंजीर जनी का मातम हुआ,
बच्चे खून से लथपथ थे। अब हमने कहा कि पानी चाहिए, ये खून दोएंगे, पानी ही नहीं, न टैंकर न नल में पानी। आप यकीन करेंगे वहां पर हमने कुछ छोटे छोटे पॉन्ड्स बनाए हैं, गंदा पानी है उसमें, उसमें जाके उन्होंने वो खून धोया। ये हसरत नहीं है, ये शेम नहीं है गवर्नमेंट के लिए। बड़े दावा करते हैं ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं, प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता, थोड़ी बहुत होती है। इसलिए हम मजबूर हो गए। इस साल हमने कहा कि भाई हम किसी मीटिंग में शामिल नहीं होंगे, न हमने जाना है, न हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है। अब देखिए ब्लैक मेल कैसे करती है गवर्नमेंट हमको। हाँ जी, डीएफओ साहब को बुलाओ, कंजर्वेटर को बुलाओ, क्या करना है जी, मीटिंग है मुहर्रम की। हाँ जी, कंजर्वेटर साहब क्या किया है, हमने इतने क्विंटल रखे हैं बाल, किस लिए, मुहर्रम फंक्शन के लिए। हद ये है कि वो बालन बिल्कुल गीला पानी से निकाला होता है। अब वो फर्स्ट मुहर्रम को हमको देते हैं, 1 महीना लगेगा उसको, अभी तो यहीं के रहने वाले हैं, 1 महीने लगेगा उसको सूखने में। क्या उसके बाद 1 महीने के बाद फिर से हम मुहर्रम शुरू करेंगे तो उस लकड़ी को इस्तेमाल करेंगे? ये ज्यादती नहीं, ये मजाक नहीं तो और क्या। ये तो हम सी चीजें कहें, जब साफ बात कहेंगे, खुलकर बात कहेंगे तो आपको गुस्सा आता है। गुस्सा तो आना नहीं चाहिए। हर एक अपना अपना नजरिया पेश रखता है। यहाँ छोटी बड़ी जमातें हैं, हमने ये नहीं कहा कि ये हमारे ही हाथ में सब कुछ है। ये हम ही यहाँ कश्मीर के जितने भी शिया बरादरी के, हम ही उनके रहनुमा हैं, नहीं, हमारी अपनी तंजीम और जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन है। हमने अपने इकाइयों में अपने लोगों से बात की कि हमें किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ हम इतना खर्च करते हैं एक एक फंक्शन में, जो हमारे घर में शब खानी होती है उसमें खर्च करते हैं, उसमें लाखों रुपये, हज़ारों रुपये, बड़े आदमी लाखों रुपये में खर्च करते हैं, छोटे गरीब आदमी हज़ारों में करते हैं। वो अफोर्ड कर सकते हैं, बालन भी मार्केट से ला सकते हैं, चावल भी ला सकते हैं, चीनी भी ला सकते हैं, बाकी चीज़ें भी ला सकते हैं। हमें मेहरबानी करके हमारे हाल पर छोड़ दीजिए, हम अपना मुहर्रम खुद मनाएंगे, हमें कैसे मनाना है, ये कोई नई बात नहीं है। तो मसला ये है कि मैंने इसीलिए आपको तकलीफ दी कि आप आए, सुनिए हमारी क्या प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लमों में क्या क्या आप हमारे साथ शेयर करेंगे, कैसे इसको आप ऐवानों तक पहुंचाएंगे।